ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے, اور اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں info@tv1canada.com, یا ہمارے فون نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. احتشام فیصل صاحب, سسٹم جو ہے وہ 2 بار تو موقع ملا میاں نواز شریف صاحب کو, تو کیا اب دوبارہ پھر آپ کے ہاتھ میں دے دیں سسٹم کے لائیں جی یہ چینج کریں؟ آپ نے پہلے کوئی خاص جو پرفارمنس جو ہے وہ تو لوگ نہیں مانتے اگر آپ کہتے بھی ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبدیلی بنیادی طور پہ ضروری ہے. اب وہ کس طریقے سے آئے گی اس پہ ہم بات کریں گے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک ریولوشن لائیں گے. تبدیلی کوئی بھی چیز جو جمود کا شکار ہے اس جمود کو توڑنا ایک تبدیلی ہے. ہم اس چیز پہ بیلیو کرتے ہیں کہ ریولوشن کی بجائے ایوولوشن کا پروسیس آگے بڑھایا جائے, کیونکہ یہی فطری عمل ہے. فطرت ریولوشن پہ نہیں چلتی, ایوولوشن پہ چلتی. تو جو تبدیلی ہے اس کی بنیاد آپ کی نیت پر ہے کہ آپ نیت کرتے ہیں کہ یہاں پہ تبدیلی ہونی چاہیے. تو الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون ماضی میں بھی جو اس دور میں 90s میں اس دور کا جو جمود تھا, چاہے وہ معاشی جمود تھا, چاہے سماجی تھا, چاہے کسی بھی سیکٹر میں, اس کو پی ایم ایل این نے توڑا. اور اس دور کے لحاظ سے جتنا ٹائم ملا ہمیں 4.5 سال, جو پاسبل تبدیلی تھی وہ لائے. تو اب بھی الحمدللہ جو آج کے چیلنجز ہیں اور آگے جو آنے والا ٹائم ہے اس میں بھی جو ضرورت ہوگی تبدیلی کی وہ ایوالو کریں گے انشاءاللہ, اور اسی سسٹم کو بہتر بنائیں گے. یعنی کہ سسٹم تبدیل کرنے کا کوئی پروگرام نہیں, یہ سسٹم دیکھیں سسٹم تو کوئی بھی تبدیل نہیں کر رہا. عمران خان صاحب بھی وہ سسٹم تو تبدیل نہیں کر رہے, وہ تو فیسز کو چینج کر رہے ہیں, چہروں کو تبدیل کر رہے ہیں. تو چہرے کی تبدیلی تو کوئی معنی نہیں رکھتی. بنیادی طور پہ سسٹم کی تبدیلی یہ ہے کہ جو جمود طاری ہے اس کو توڑا جائے, یا اس کو اگر کوئی ویک پوائنٹ ہے اس سسٹم کا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ سسٹم کو ریپلیس کر دیں. اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی جو ویکنس ہے یا اس کی جو کمزوری ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کو آپ بہتر کریں. چلیں جی صاحب, ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم یہی رہے گا, اس کو اوور ہالنگ جو میاں نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں, عمران خان نہیں کر سکتے. ان کو تو یہی سوٹ کرتے ہیں نا, وہ تو یہی کریں گے, یہی سسٹم جو ہے. اور جنگ بھی اسی چیز کی ہے. اچھا, جنگ تو ہے اسٹیٹس کو اور اینٹی اسٹیٹس کو کی. ہم یہ چاہتے ہیں عدلیہ آزاد ہو. آپ دیکھ لیں 96 سے پہلے کبھی کسی بھی ان کے جلسے نکال کے دیکھ لیں, کبھی کسی نے کہا ہو عدلیہ آزاد ہو. یہ سب عدلیہ پہ حملے کرتے رہے ہیں, نمبر 1. دوسری بات, میرے بھائی نے کہا ہے کہ جی ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, بن گئے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال ابھی بنے. چودھری نثار صاحب میرے خیال 2 دن پہلے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کر کے آئے ہیں, شاید ان کو نہیں پتا ہوگا. اب یہ نوٹ کر لیں, 2 دن پہلے کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا, خفیہ یہ سامنے بات ایک ہی ہے, اس سے بندہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بن جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ اور کس کو کہتے ہیں؟ اچھا, میاں صاحب کو تو پوری دنیا جانتی کہ بھئی گورنر ہاؤس جو ہے لاہور سے شروع ہوا سفر اور کہاں تک ہے, اس میں تو کوئی چھپی رائے نہیں, سب لوگ جانتے ہیں. اگر یہ نہیں مانے تو ان کی اپنی بات ہے. اور رہ گئی بات چینج جو کرنا ہے, چینج تو چاہیے. چہرے تو ہم نہیں بدلنا چاہتے, چہرے تو آپ بدلنا چاہتے ہیں کہ آپ نے اسی مشرف سے جا کے پٹیاں باندھ کے حلف لے لیا, یہ کہ جائز ہو گیا. جس کے ریفرینڈم مشرف کے بھائی کو, جس کے ریفرینڈم کو آپ حصہ تھے, اسی کی بات میر مقام صاحب اور کتنے ان کو بھی ساتھ لے لیا. چینج جو ہم لے کے آئے ہیں, ہمارے آنے سے عدلیہ کا آزاد کا بھی نعرہ لگا, ٹیکس کا. ہم جو چاہتے ہیں کہ دیکھیں نا, جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ پوری دنیا کے ملک سارے ٹیکس پہ چلتے ہیں. اور ہمارے جو لیڈر ہوتے ہیں, دیکھیں نا, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیڈر میرے نزدیک رول ماڈل ہوتا ہے آپ کا. جو وہ کرتے ہیں ہم دوسروں کو بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اسی کو فالو کریں. ٹیکس نہیں دیتے. اچھا, لیڈران آپ مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی سے لے کے کسی کا بھی چیک کر لیں, ٹیکس نہیں دیتے. ہم وہ چاہتے ہیں کہ ٹیکس لے کے آئیں گے. ہم نے جو بھی اپنی جو پالیسی دی ہے, سب لوگوں نے پڑھی ہوگی, نہیں تو آپ ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ ٹیکس اکٹھا ہوگا, لیڈر ٹیکس دیں گے, اپنے ایسٹ ڈکلیئر کریں گے, تو پھر چینج آئے گی. کرپشن کے جن پہ الزامات ہوں گے ان کو طریقے انصاف ٹکٹ نہیں دے گی. لیکن پارٹی میں رہیں گے. پارٹی میں دیکھیں ابھی تو آ رہے ہیں. پارٹی جو ہے یہ پبلک پارٹی ہے, یہ کوئی کلب تو نہیں. جو لوگ آئے ہیں, بڑے بڑے چہرے اور بڑے مضبوط سیاستدان آئے ہیں, وہ ٹیکس دیتے ہیں. ایک منٹ پہلے ان کا جواب دے رہا نا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ چینج, وہ ٹیکس آئے گا, تعلیم کا نظام ایک ہوگا, منسٹریاں 17 سے زیادہ نہیں ہوں گی, فوج نہیں ہوگی کہ بھائی جس طرح پیپلز پارٹی نے دیکھا نا بلوچستان ہے,
50 सीटें हैं, 49 मिनिस्टर हैं। पूरी दुनिया से, चाइना से कंपेयर कर लें, इंडिया से कर लें, अमेरिका से कर लें, हमसे कितनी बड़ी बड़ी इकानमी, आबादी के लिहाज से भी हमसे कितने बड़े हैं, उसके बावजूद उनकी मिनिस्ट्री देख लें और हमारे देख लें। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि भाई हमारा साथ दो और आप ये ले लो। अभी पंजाब की इनकी हुकूमत, इनकी मेजॉरिटी नहीं है, कैसे चल रही है? क्या जरदारी साहब का इनको तावन हासिल नहीं है? अच्छा, वो दोनों एक हैं आप? सारे ही एक हैं। इस वक्त जितने भी लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, कराची से लेके सिंध में MQM भी हुकूमत में है, और ये पहली दफ़ा हुआ है। सरहद में ANP भी हुकूमत में है, पंजाब में ये भी हुकूमत में है, मरकज़ में पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में है। तो पीछे रहा अपोजिशन कौन है? देखो ना, अपोजिशन का किरदार जिनको अदा करना चाहिए था, सिर्फ चंद वजारतों की लालच में या जो भी लूट खसूट करने के चक्कर में वहाँ ये बैठ गए हैं। इनको चाहिए था पहले दिन से ही, जिस दिन सदर जरदारी ने प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन के पेपर जमा कराए थे, इन्होंने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया? नहीं, वो तो उस वक्त तो साथ थे, वो मिसाके जमहूरियत था, वो दोनों उस वक्त तो आमने सामने मसाके नहीं, मजाके क्या मसाके जमहूरियत है क्या? मुल्क की क्या हालत चलेगी? इदारे सारे ख़त्म हो गए। क्या जरदारी साहब को मियाँ साहब पहले से नहीं जानते थे, या पीपल्स पार्टी को? वो इकट्ठे हुए हैं परवेज़ मुशर्रफ को निकालने के लिए, निकाल तो दिया, वो कामयाब तो हो गए थे। जिस तरह निकाला उसको गार्ड ऑफ ऑनर दे के निकाला गया, इस तरह निकाला जाता है किसी को? वो आप समझ अच्छा, मसला ये है जूते मार के निकाला नहीं, गया। जूते नहीं, उसको अरेस्ट करना चाहिए था। देखिए मसला ये है, अगर उस पे ऊपर क्राइम है, उसने जी आइन की खिलाफ वर्जी की हुई है या आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी, थोड़ी सी बातें उन ऐसे लोगों को आप जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर तो नहीं दें, उनको अरेस्ट करें, जरूरत पैदा करें। सिर्फ बाहर से कहना चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं मियाँ साहब जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, मियाँ साहब काजी हुसैन अहमद साहब गवाह हैं 2008 के इलेक्शन में। चौधरी निसार को पूछ लें या जो उनके वो राजा क्या उनको पूछ लें कि भी मियाँ साहब ने क्या वादा किया था कि भी हम सब इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। वहाँ बैठे बैठे डेविड मिलीबैंड की कॉल आती, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, और मियाँ साहब उसी वक्त इलेक्शन में चले जाते हैं। उसकी उन्होंने कहा था कि अगर मियाँ साहब ऐसा करेंगे हम पार्टी छोड़ देंगे। वो भी साथ बैठे हुए हैं। फिर मियाँ साहब की जद्दा से कॉलें जाती हैं, आप शेख रशीद साहब को सुनते रहते हैं, दूसरे लीडर भी कहते रहते हैं कि इनकी कॉलें अभी बाहर से, ये पीछे एक दो वाक़यात हुए थे, उन्होंने कहा था जनाब ये देख लें जद्दा से कॉल आनी है और ये ठीक हो जाएंगे। अच्छा, आपका कहना है कि मियां नवाज शरीफ की कोई अपनी पॉलिसी नहीं है, बाहर लोग बैठे हुए हैं उनको चलाने अगर मैं समझता हूँ पॉलिसी है, मैं इनके ज़रिए ही आपके ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ। मियाँ साहब लीडर जो होते हैं, जहाँ जिस मुल्क में हम रहते हैं, लीडर टू लीडर डिबेट करते हैं। मियाँ साहब टीवी पे आए, खान साहब उनके साथ बैठेंगे, डिबेट करें, पॉलिसी लोगों के सामने रखें अपने। कोई ऐसा शायद कोई चैनल कोई दोनों को दावत दे जनाब इलेक्शन से पहले? नहीं, चैनल तो दावत दे चुके हैं, वो नहीं जाते मियाँ साहब, वो तो आपने देख लिया। मियां साहब जाते क्यों नहीं जी, है? मैं इनकी सहाफियों का सामना क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही बात, सहाफियों का सामना बहुत करते हैं। नहीं, प्रेस क्लब में कभी नहीं गए। वैसे ये मैं आज आपको बताऊं, प्रेस क्लब में इमरान खान गया है, बेनज़ीर भुट्टो गई हैं और बड़े बड़े लीडरान गए हैं। मियां नवाज शरीफ ने आज तक कराची प्रेस क्लब या लाहौर प्रेस क्लब में सहाफियों का सामना नहीं किया, हमेशा रायवंड में बुलाते हैं। हाँ जी, तो सहाफी आप रायवंड में जाके आप उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये इन्होंने पहली बात की अदलिया की, तो इन्होंने कहा जी इन्होंने अदलिया की आज़ादी के लिए जो कंट्रीब्यूशन मुस्लिम लीग नून की है, तमाम शोबा हमारी जो ज़िंदगी के शोबात हैं, सब ने, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया ने, हर बंदे ने एक रोल प्ले किया अदलिया की आज़ादी में। तो जो बंदा 2 स्पाई देख के भाग गया उसका भी लोगों को पता है, और जिसने अदलिया को बहाल कराया उसका भी लोगों को पता है। तो इसके ऊपर तो आप डिबेट ना करें। अदलिया की बहाली के ऊपर लोगों को पता है कि अदलिया किसने बहाल की। दूसरी बात की उन्होंने 2008 की। 2008 में डिसक्वालीफाई किसको किया गया? इलेक्शन से डिसक्वालीफाई किसको किया गया? मियां नवाज शरीफ को, मियां शहबाज शरीफ को। ठीक है, फिर भी हमने पंजाब में अपनी गवर्नमेंट बनाई। ये बात करते हैं डिबेट की, तो जब ये इमरान खान साहब कोई 10-15 सीटें लेके आ जाएंगे ना असेंबली में, तो फिर ये उनसे बात भी कर लेंगे। अभी तो इनकी कोई सीट नहीं है, ठीक है, इनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। 10-15 सीटें मिलेंगी मेरा ख्याल है 10, शायद 10 मिल जाएं, वो भी मुझे डाउट है, वो भी मुझे डाउट है कि 10। आपके लीडरान कहते हैं कि वो अपनी सीट भी जीत नहीं पाएंगे। मुझे वही मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 भी मुश्किल से हैं। शायद ये 5 करोड़ का जो दे रहे हैं, मैंने आपको मिसाल दी कि हमारे पंजाब में जब कोई पठान आते हैं ना, वो बेचने कंबल या कुछ चीज़ें बेचने आते हैं, तो उसकी कीमत जो है वो 100 गुना ज़्यादा बताते हैं। वो 10,000 रुपये बताएंगे कंबल का, बाद में वही कंबल 200 में देके जाएंगे वो। ठीक है, तो ये भी यही कह रहे हैं 180 का नंबर देंगे और ये 10 भी ले जाए तो बड़ी बात है।
कितनी सीटें होंगी? दूसरी बात बस अब मैं कहता हूं सीटें तो पूछ लूं कितनी? इंशाल्लाह मेजॉरिटी हुकूमत तरीके इंसाफ की होगी। अच्छा, majority। बिल्कुल आज ये लिख लें, आज कर दें। अच्छा चले नहीं, इनसे नहीं, पूछ लें, पार्लियामेंट चले में। आज मैं ये इनसे ये पूछ लें कि अपने 10 बंदों का कैंडिडेट का नाम बता दें जो सीटें जीतेंगे, उनका नाम बता दें। आज कौन से 10 बंदे जो जीतेंगे? मैं जनाब 20 का आपको बता आप दूं। 10 का बता दें। हमारे इजाज चौधरी साहब जीतेंगे किधर से? लाहौर से। चलो अच्छा इनका नाम काट अच्छा दो। ये रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं मैं तो हाँ बता। अच्छा जी और दूसरा खान साहब ये भी आपको इंशाल्लाह ताला वो नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन अच्छा, लड़ेंगे। लाहौर जब से कहाँ किसी को कुर्बानी का लाहौर से उनके लड़के हल्के से क्या आएंगे। हो गया? ठीक या है जहाँ भी मियां साहब चैलेंज करेंगे वहाँ से ये भी इलेक्शन हार लड़ेंगे। गई वो। अच्छा अगला अगला क्योंकि हम किसी को कुर्बानी का बकरा नहीं इलेक्शन बनाएंगे। के बाद तीसरी ना, सीट इलेक्शन बताएं। के बाद हम ये प्रोग्राम दोबारा सर, तीसरी सीट बताएं हाईलाइट अपनी। चलाएंगे कि ये क्या आप आपका अपनी analysis तीसरी क्या है? सीट बताएं। उमर चीमा साहब हैं, इनामुल्लाह न्याजी साहब हैं, हार गए, ये दोनों हार गए, ये दो बंदे हार नहीं गए। नहीं वो नाम ले रहे हैं ना, अब हमारे पहले नाम आरिफ अलवी साहब हैं, इमरान इस्माइल अलवी साहब। अलवी साहब इलेक्शन जीतेंगे? बिल्कुल क्यों नहीं? किस हल्के से जीतेंगे वो? वो कराची से जीतेंगे। अच्छा ठीक है, कराची से जीतेंगे वो। एमकेएम के असद साथ कैसर साहब हैं, गुलाम सरवर साहब हैं, गुलाम सरवर साहब जीतेंगे। हमारे जनाब वो सदाकत अब्बासी साहब हैं, नहीं, अमर उस वक्त शाह महमूद अच्छा, कुरैशी और सदाकत- जावेद सदा- हाशमी नहीं रहेंगे? अच्छा सदाकत जवेद अब्बासी हाशमी, हाँ जवेद हाशमी साहब हैं। क्यों शाह महमूद कुरैशी शाह महमूद कुरैशी बदर साहब भाई, हैं। नहीं वो तो सदाकत अब्बासी साहब का इन्होंने जिक्र किया। मैं इनको वो- सदाकत अब्बासी साहब आपके पिंडी के हैं ना ये? जी बिल्कुल। ठीक है। इन्होंने शेख रशीद का जब जलसा था, जलसी थी जो, हाँ जी। उस जलसी से पहले इन्होंने खड़े होकर ये कहा था कि हमें शेख रशीद और इन जैसे लीडरों की हमायत की जरूरत है। अच्छा क्या आप इसको इंडोर्स करते हैं? नहीं, बिल्कुल सही, हम इसीलिए उनके पास गए। जो हमारा मौक़िफ़ है इसका शेख मतलब- रशीद साहब उसको सपोर्ट करते हैं, हमारा उसे इत्तेहाद आप हो इसे गया, कोई ठीक है। पार्टी में नहीं शामिल हो यानी गए। अब ये हालत हो गई है नहीं, नहीं, कि नहीं। पीटीआई को शेख रशीद और इन जैसे लीडरों की हमायत की जो जरूरत खुल के पड़ गई। बात करें, जो बिल्कुल जो अब ये- सच है सच को ये सच आपकी सियासत कहें, है। जो गलत है उसको गलत आप ये कहें। देख लें, इससे पता चलता है कि कौन एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है और कौन भाई शेख रशीद बेचारा तो एक बेचारा एक पार्टी अच्छा, है, एक वैसे सीट- जज साहब जो शेख रशीद के आने से तहरीक इंसाफ को डैमेज नहीं हुआ? नहीं वो आए कहाँ है हमारे साथ? नहीं वो जो स्पोर्ट है, लाजिम बात है, आपने स्पोर्ट नहीं देखें साहब, वो तो जब भी हम इलेक्शन में जाएंगे हो सकता है इसके अलावा और भी वो पार्टियां जो हुकूमत में नहीं है, जो हमारे मौक़िफ़ को सपोर्ट करेंगी, हम उनके लिए ज़रूर कंप्रोमाइज़ वो करेंगे। शेख रशीद साहब तो उसमें सिर्फ हम देखें, हमारा जो है जो मकसद है, हम उस मकसद पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उस मकसद को हासिल करने के लिए छोटे मोटे ये सारे ये करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एमकेएम भी आएगा इसमें? नहीं कभी भी नहीं। अच्छा, एमकेएम तो पावर में है ना। सर मेरा इख्तिलाफ ये है जितनी पार्टियां हुकूमत में, हम इनके साथ कभी इताद नहीं करेंगे। ये तब्दीली की बात करते हैं। मतलब क्या तब्दीली, क्या अभी तक इन्होंने चैलेंज, अब इलेक्शन होंगे इक्तदार में आएंगे वो तो बात की बात है, अभी तक की जो परफॉर्मेंस है उसमें क्या तब्दील किया है? तब्दील जो किया है कि पुरानी सियासत चल रही है, एक वो सेकंड, सारा मुझे मीडिया बात ये कहता है कि वो लोग जिन्होंने कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, हम उनको बाहर ले आए। मुझे आप बात कंप्लीट करने प्लीज। अभी तक सियासी जो रवैये थे पाकिस्तान में वो यही थे कि जो अपने मुफाद के लिए, अपने सियासी मुफाद के लिए किसी भी कबील का, किसी भी तरह का आदमी, किसी भी किरदार का आदमी, उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर वो 5-10 हज़ार वोट ला रहा है तो उसको ले लो। ये एक पुराना रवैया था। तब्दीली की जब आप बात करते हैं तो ये रवैया तब्दील होना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि पीटीआई में हर वो सबका करप्ट आदमी, मतलब मैं नाम ले सकता हूँ, जहांगीर तरीन है, जो पाकिस्तान जैसे ज़रई मुल्क में जो आटे और चीनी के बहरान के जिम्मेदार हैं, वो पीटीआई में। वो कैसे जिम्मेदार हो गए? सर वो उस वक्त वजीर सनतो पैदावार थे, उनकी अपनी शुगर मिल्स थी, अच्छा कब उन्होंने ज़खीरा अंदोज़ी की नहीं, थी कब की बात है? 2008 में। 2008 में चीनी का रेट क्या था, अब क्या है? नहीं उस वक्त रेट क्या था और अब क्या ये है? 45 रुपए किलो तक ले गए थे। नहीं आप उसको छोड़ें, आप ये देखें ना कि उस वक्त क्या था और आज क्या। 2008 और 4 में तो नहीं, कम अच्छा से शबीर, मैं बात थोड़ी सी complete करूं। 50% जो है महंगाई, एक दूसरी साइड पे आप बात कर्जे, करो, खुर्शीद कसूरी साहब हैं, जुराइम, सारे 50% है, कर्जे से लेके जुराइम तक, रिश्वत। अच्छा सवाल अब ये है जो एहतशाम ने उठाया है कि जो तहरीक इंसाफ वो तब्दीली की बात करती है, लेकिन इस वक्त कोई उनका ऐसा इकदाम उनके बकौल नज़र नहीं आया जो साबित कर सके कि वो कोई तब्दीली ला सकती है। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, उसके बाद शबीर चौधरी साहब से पूछेंगे कि क्या जो जब से तहरीक इंसाफ बनी है अब तक, क्या उन्होंने अंदर कोई तब्दीली लेके आए हैं अपने किरदार में या अपनी बातों में, या वही चेहरे जो पुराने थे, वही भगौड़े जो हैं वो अपने साथ मिला लिए हैं। कमर्शियल वक्फे के बाद शबीर चौधरी जो तहरीक इंसाफ कनाडा के ओहदेदार हैं और इमरान खान के मुशीर ख़ास हैं, उनसे पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा, प्रोग्राम हमारी भी सुनो।